जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी टर्म यूज़ होती है। तो उसमें हम कैसे काम करें एंड कैसे उसको मैनेज करें एंड इसका क्या इम्पोर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट में। You should convert your good risks into opportunity. We are gathered today to launch the significant new title. Project Management and Finance explores the financial core of successful project delivery and presents complex concepts in a clear application focused manner. Breaks down the fundamentals of project finance into actionable knowledge, cover budgeting, cost control, forecasting, risk assessment, and financial modeling, including real-life examples, practical templates, and decision-making dashboards. Encourages leaders to approach money with planning, discipline, and purpose. Helps bridge the gap between infrastructure thinking and personal finance. To encourage ethical, informed, and sustainable decision making is the main mission of his creation. So please welcome Mr. Rajdeep Bhattacharya on the stage. गाइस तालियां हो जाए जोर। Guys, please show some energy, yeah. This is a very, very special moment for me because this is something which has brought me here in front of you today. And I feel immense pleasure and proud to be here with a very nice masterpiece which I have created. I should say, rather, this is an evaluation of my past 30 years, which I have given to the industry of infrastructure constructions, leadership, and the construction world of our country, where we have contributed in the last 30 years in building this fabulous nation. First of all, I would convey my sincere regards and uh, my I will try to pay homage to my late parents. Both of them are not there with me today, but still they are existing in the first book which has come with all of us. A little bit about the book is it's basically the experience which I have gained in the last 30 years in the construction industry, wherein we have observed there are certain gaps in terms of like a technical person will always have some lack of the financial aspects of the project, which is sometimes very, very important for a person. The moment he elevates to the next level, the senior level, it is very important for him to understand the financial acumen of the project, because unless as an engineer, unless as a technical person, he understands the financial aspects of the project, the outcome of the project cannot be forecasted. That is the first intention which has actually compelled me to take up this subject. Second most important thing was, when we do projects, the people who are doing the projects will always have a little bit of gap in the neighboring acumens. In order to bridge these gaps, I think this book is a very good masterpiece, is a very good bridge in filling those gaps. And the third and the most important thing which I wanted to bring along with this book is
for the new generation, for the young boys and girls who are coming to the industry and who are our future generation. So whatever I could learn in the last 30 years in the sector of construction techniques, the project management techniques, the financial aspects of the project, how best you can do it, what are the important things you can learn. So these are all the things which I have tried to filter out and keep in this book. And I'm sure that this is a book which is going to be very, very helpful, not only for the projects people, it will be helpful for all the people who are involved into industry or a construction sector or any kind of manufacturing sector, wherein they will be able to see the complete scenario, the complete integrated scenario of different acumen of this industry or the projects. So this is the a small introduction about this book. With this, I will come to the end of this discussion. I'm very thankful to all of you who have contributed this journey, who have given their hard work in making this book a very successful. Mr. Tarun, very energetic and very young entrepreneur, and I'm really impressed, and I give you my best wishes that in the days to come, you and your hard worker team, you will grow like anything. And this is my best wishes, and which I have observed in the last few months while working hand in hand with all of your team members. The energy is very good, and all the kids working in the team, I personally wish my all the best to all of you, and I give once more a very good best of luck to Mr. Tarun and his team, Pen and Paper Publications. Thank you so much. So, hello दोस्तों, my name is Tarun Sharma from PNP team, and I'm going to start the podcast with जो कि हैं आज हमारे साथ हैं राजदीप भट्टाचार्य सर, जिन्होंने एक बुक लिखी है विच इज़ अबाउट मास्टरिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. सर ऑलरेडी सिविल इंजीनियर है एंड बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं और बताते हैं कि कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो. इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव मनी एंड यू कांट मैनेज दैट इन अ बेटर वे, सो इट्स अ प्रॉब्लम. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट ओनली. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट एंड बहुत सारे सवाल मैंने लिखे हैं, सो मैं वन बाई वन आपसे पूछूंगा. सो पहले तो सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहूँगा आपकी बुक के लिए सर. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट बुक. आई नो लाइक वी आर वर्किंग ऑन योर 4 बुक्स टुगेदर. आपकी कंटेंट में जो भी चीज़ें होंगी आप बताइएगा, आपके पे हम लोग काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टू सिविल इंजीनियर एंड देन यू written a book and now you are a author. So how it's feeling now? Please. फर्स्ट ऑफ ऑल तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई हो इस वर्ल्ड बुक फेयर के लिए. और आपका बेसिक सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक जो शुरुआत हमने की थी आज से 30 साल पहले एज अ यंग इंजीनियर 1996 में एज अ ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी. तो उस वक्त ये नहीं पता था कि इंडस्ट्री में 30 साल के बाद जिसको व्हाट वी कैन से इज़ दैट वी आर आई मीन दिस जनरेशन वाज द लकीस्ट जनरेशन हु हैज़ सीन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फिलासफीज़, इन टर्म्स ऑफ जो बाकी हम जिस तरीके से काम करते हैं उन सब चीज़ों का एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पिछले 30 साल में देखा है. 96 में जब हम लोग काम करते थे उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम की जो काम करने का तरीका था या फिर वहाँ का जो माइंडसेट था, दोज थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव इवॉल्व्ड इनटू लॉट ऑफ न्यू एडिशंस, न्यू इनोवेशंस, न्यू रिवाइज्ड वे ऑफ डूइंग द वर्क, डिफरेंट माइंडसेट, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हैज़ गॉन चेंज्ड, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हैव गॉन चेंज. तो मुझे लगता है पिछले 30 साल के अंदर में जो हमने काम किया है काफ़ी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली है और देखने को मिली है. सो आई रियली फील ब्लेस्ड दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन जो इस जर्नी में इस ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज को उन्होंने देखा है. सो दैट इज़ नंबर 1. दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा तरुण जी, आपने एक जो मुझसे कहा था कि जब 96 में मैंने शुरुआत की थी एज अ यंग सिविल इंजीनियर,
तो उस टाइम पे हमने काफ़ी हमारे जो ख्वाहिशें थी जो एज ए सिविल इंजीनियर, बिकॉज व्हेन वी वर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ एक्चुअली बिल्डिंग योर नेशन। आप अपने देश को बना रहे हैं, तो आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर में आपकी अपनी जो काम करने की जो आपकी जो विज़न है, आपके काम की जो इंटीग्रिटी है, आपका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो बिल्डिंग या जो ब्रिज या कुछ भी आप बना रहे हैं उसकी जो इंटीग्रिटी है स्ट्रक्चर की, उस स्ट्रक्चर को अगर डिज़ाइन किया गया है 100 साल के लिए, तो क्या आप उन सारी चीज़ों को कंप्लाई कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आती हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट all put together, it demands a person, it demands a character who is highly determined, who is highly innovative and who is highly knowledgeful about the minor parts of these things. तो इसी बारे में आज हम यहाँ बैठे जो चर्चा कर रहे हैं। सो ये जो बुक है ये उस पिछले 30 सालों का निचोड़ है जो मैंने निकाला है, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि जो हमारे इंडस्ट्री के जो आने वाले बच्चे हैं, जो आज जो न्यू जनरेशन हमारी आ रही है, उन तक उन चीज़ों को पहुंचाया जाए कि अगर आप एज अ इंजीनियर काम कर रहे हैं या फिर अगर आप एक इंडस्ट्री में एज अ फाइनेंस पर्सन काम कर रहे हैं, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली लिमिट योर सेल्फ इनटू योर कोर डोमेन एरिया, यू शुड गो बियॉन्ड इट। आपको उससे बाहर भी देखना पड़ेगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट आस्पेक्ट्स, द नेबरिंग आस्पेक्ट्स। अनलेस you understand those neighboring aspects, it will be difficult for you to give proper judgment, proper justification to your work. तो ये एक मेरा सोचने का तरीका था, और इसी के बारे में ये मेरा जो 30 साल की जर्नी थी मैंने इस बुक में लिखने की कोशिश करी है। थैंक यू। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जब आपको ये थॉट आया कि यू आर वर्किंग हियर एंड यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम 30 years एज यू मेंशन, तो बुक लिखने का थॉट कैसे आया कि मेरे को लिखने का पर्पस क्या है? यू वांट टू डू सम हेल्प ऑफ बिगिनर इंजीनियर्स और व्हाट? कैन यू से अबाउट द पर्पस ऑफ इट? बहुत ही आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। बुक लिखने का नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो खासकर जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा रफ एंड टफ माना जाता है कि बंदा जो है अपने काम में बिजी रहता है, और या तो वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो नेचर ऑफ दिस प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी अग्रेसिव, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड, यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी रेडी फॉर अकोमोडेटिंग योर डिफरेंट शिफ्ट्स ऑफ वर्क। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। However, as a civil engineer, when I started my journey, the idea of being a civil engineer was actually induced in me long back by none other than my father. तो मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मेरे को ये कहा था कि यार अगर आपने कुछ करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। Either you serve the nation, go to the forces, or you be into the union commission and serve the public, or if at all you are not successful in those 2 things, the third aspect is the construction sector, because this is also one way of building your nation. तो वहाँ से मैंने ये चुनी थी। उनका एक कहना और भी था कि लाइफ में हम जो भी करते हैं, वट एवर वी डू, यू शुड डॉक्यूमेंट इट। यू नो, आपको उस चीज़ को, जब तक आप उस चीज़ को लिखेंगे नहीं, आप उस चीज़ को आत्ममंथन जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, मुझे लगता है वो करने का एक सबसे अच्छा तरीका और सबसे बढ़िया ज़रिया जो है वो है आप अपने चीज़ों को जो आपने किया है पिछले कई डिकेड्स में, दशकों में, कई सालों में, आई थिंक द बेस्ट वे टू कीप अ मेमोरी ऑफ दोज थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, योर गुड थिंग्स, योर बैड थिंग्स, गुड थिंग्स विच एवर हैज़ हैपन टू यू। तो वो सारी चीज़ों को इफ़ यू पेन डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तरुण जी ने आपने बहुत सही कहा कि अभी हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हम और भी कर रहे हैं साथ में, उसमें भी हमने काफ़ी अलग अलग थीम्स को लिया हुआ है, और सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि देयर इज़ समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग द थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स विच आर येट टू कम, और हाउ वी कैन इम्प्रूव द प्रोसेस। तो वो सारी चीज़ों पर चल रही हैं। तो कुल मुद्दा यही रहा, तो आइडिया वहीं से आया और ये बुक लिखी। आप लोगों का साथ रहा, दर्शकों का प्यार रहा, मेरे रीडर्स का सबका बहुत अच्छा मेरे साथ सपोर्ट रहा। तो
आप लोगों का प्यार रहेगा और आगे भी हम लोग बहुत अच्छा लिखेंगे। थैंक यू। सो जैसे कि मेरा भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और जब मेरे को ये टॉपिक सुनने में आया तो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज, लाइक कन्फ्यूजन की नॉट क्लियर थिंग्स कि ये है क्या, व्हाट इज़ द टॉपिक। क्योंकि जिनके टेक्निकल को आप थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में मेरे को समझाओ, इवन व्यूअर्स को, या व्हाट इज़ द। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में इट इज़ इंटीग्रेटेड। हम हर चीज़ पे मैनेजमेंट ही करते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइनेंस ले लें, आप अपनी पर्सनल चीज़ों को व्यवस्थित करने की चीज़ों को देख लें, या आप अपने लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं, हाउ डू यू कंडक्ट योर डेली बिहेवियर, हाउ डू यू मॉनिटर योर प्रोग्रेस, आप अपना जॉब कैसे कर रहे हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हट जाते हैं, नाउ वी पुट दिस एस्पेक्ट इनटू द प्रोफेशनल लाइफ, तो ये बन जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप इस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे। तो प्रोजेक्ट मतलब इट कैन बी एनी प्रोजेक्ट। आप एक बुक लिख रहे हैं, दैट्स अ प्रोजेक्ट। आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोजेक्ट। यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, दैट्स ऑल्सो अ प्रोजेक्ट। अब उसको करने के लिए जो मैनेजमेंट आपको चाहिए वो तो हमारे अंदर में है। जो बच्चे आज निकल रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, कोई सिविल इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, कोई मैकेनिकल करके निकल रहा है, कोई बंदा एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट निकल रहा है, MBA करके या फिर कुछ भी करके निकल रहा है, एंड देन दे आर वर्किंग इन द रिस्पेक्टिव डोमेन्स। बट यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट कम्स आफ्टर सर्टेन एज। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 30 साल में चीज़ें बदली हैं, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड, इनोवेशंस हैव कम। अब ज़रूरत ये पड़ती है, अनलेस you upskill yourself, unless you broaden your vision to understand कि अगर मैं टेक्निकल चीज़ों पे एक्सपर्ट हूँ, then only this technical expertise is not going to sustain for me for a very long time, because it's a era of upskilling. Now the first chapter in upskilling is to have clarity about your neighboring domains, यानी कि आप जिस काम को करते हैं उसके आसपास के एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो सबसे बड़ा चीज़ें हम समझते हैं, अगर वो कोई टेक्निकल बंदा है उसके लिए सबसे बड़ा नेबरिंग सेक्टर है, दैट इज़ द फाइनेंस। अगर कोई फाइनेंस का बंदा है जो फाइनेंस में काम कर रहा है, उसके लिए वो है टेक्निकल, बिकॉज दैट इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़ क्रिएटेड। तो मुझे लगता है आपका जो सवाल रहा काफ़ी अच्छा रहा कि जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इनकी एक इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। और इस इंटीग्रेशन को समझने के लिए ये जो किताब है इसके अंदर में इट इज़ कम्प्लीटली गिवन कि चीज़ों को इंटीग्रेट करके सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू हमें कैसा देखना है। तो इट बिकम्स वेरी इजी किसी भी नए प्रोफेशनल के लिए, irrespective of his domain, whether he is a technical person or a financial person. So this is how it goes. Thank you. It was a wonderful and simple answer. I got it. And my next question is, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सारे वो डिले हो जाते हैं, तो रीज़न क्या होता है? ये बहुत आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, और ये मेरे ख्याल से सवाल केवल आज इस फोरम का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पूरा जो है इंडस्ट्री के अंदर में ये चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी प्रोजेक्ट्स डिले होती हैं। हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, PPP मॉडल में कर रहे हैं या अलग अलग मॉडल में कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ऑन टाइम हुए हैं, ऑन कॉस्ट भी हुए हैं। बट यस, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर या तो हमें कॉस्ट ओवररन देखना पड़ रहा है या टाइम ओवररन देखना पड़ रहा है। तो चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं। अब ये चैलेंजेस को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इस मुद्दे को सोचना पड़ेगा इस तरीके से कि हम जब किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं और जब प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी कि वहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उसकी फिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उसके अंदर में हमारा यूटिलाइजेशन रेशियो क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वो जब हमारा DPR रेडी होता है, DPR रेडी होने के बाद फिर टेंडर बनता है, फिर वो वर्क अवार्ड होता है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बिडिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम जब काम को चालू करते हैं उसके पहले कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इवन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कुछ लर्निंग्स रही हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन,
in terms of underground utilities, in terms of legal clearances, in terms of local compliances, in terms of other kind of statutory requirements. Unless as a good project head, as a good project implementation agency, the moment you think that this is the feasibility study, this is how our project is going to happen, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, जो आपके सवाल का जवाब है कि डिले होने के जो कारण हैं, इनको अगर थोड़ा हम और अच्छे तरीके से इनको स्टडी करके उस रिस्पॉन्स टाइम को प्रोजेक्ट के टाइम से हम पहले अगर कंप्लीट कर दें, तो वो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उन चीज़ों को कंट्रोल करने का, समहाउ वो रिस्पॉन्स टाइम इज़ गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोजेक्ट टाइम, और आपको ये दिखता है कि मेरा प्रोजेक्ट लेट हो गया या प्रोजेक्ट की कॉस्ट ओवररन हो गई। तो अगर आपने वो प्लानिंग को पहले कर लिया इन द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो मुझे लगता है आप इसी को कर पाएंगे। और काफ़ी अच्छा वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज, स्पेशली द कंपनीज फ्रॉम चाइना एंड जापान, जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेरी बिग कंपनीज लाइक लार्सन एंड टूब्रो एंड अदर्स। सो दीज आर द कंपनीज, अगर आप देखेंगे इनका जो विजन है वो बहुत क्लियर रहता है। बिफोर द प्रोजेक्ट इज इवन स्टार्टेड उनका विजन बहुत क्लियर रहता है, और ये जो सारी चीज़ें हैं इनिशिएशन फेज़ की, प्लानिंग की चीज़ें, दे विल ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज़ भी है। तो यस, आपका सवाल सही है और एड्रेस करना भी है, एंड स्लोली आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हमने एक अभी वर्ड यूज़ किया प्लान, तो जब हम प्लानिंग करते होते हैं उस टाइम पे कुछ हमारा अमाउंट निकल जाता है कि हमारा कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये हमारा एक लेवल है, इतना इसमें इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट बढ़ता है बीच में आके उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है, उसको बड़ा रीज़न क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा आपका एक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो दो चीज़ें हैं, टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन, ये आज के टाइम पे हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द इंडस्ट्री पीपल। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि जो इनिशिएशन फेज़ में हम लोग जब उस प्रोजेक्ट की विजन को क्लियर करते हैं, उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को देखते हैं, तो उस टाइम पे अनलेस यू डू इट वेरी रिलीजियसली, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर में व्हाट इज़ एग्जिस्टिंग बिलो द ग्राउंड। यू नेवर नो। आपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी एंड सडनली यू एनकाउंटर वन ऑफ द पाइपलाइन विच वॉज लेड अराउंड 70 years बैक बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दैट पाइपलाइन इज सो वीक टुडे दैट अनलेस यू shift the whole pipeline, you cannot do complete excavation, because the moment you do the excavation there will be a breakage in the pipeline and the whole city will be without water or without sewerage, or supply of the things will be disrupted. तो ये एक चीज़ है। सेकंड, आपने फिजिबिलिटी स्टडी कर दी, आपने ये एक्सपेक्टेशन कर ली कि यार मैं आई विल डू माई लैंड एक्विजिशन प्रॉपरली, बट देन यू डिड नॉट फोरसी कि जो लैंड एक्विजिशन मैं करूँगा उसके बीच में 2-4 पॉकेट्स ऐसे हैं विच आर ऑलरेडी इन डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर दोज आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर पोजेस्ड बाई सम ऑफ द इंडिविजुअल हु आर इन्फ्लुएंशियल, तो कहीं ना कहीं दे विल नॉट अलाउ यू टू अक्वायर द लैंड। तो वहाँ पर आपको अपने अलाइनमेंट को चेंज करना है, आपको अपने फ्लाईओवर के लोकेशन को चेंज करना है, आपको फाउंडेशन अपनी चेंज करनी है, आपको डिज़ाइन सारा रिवाइज करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि सीधी बात है कि जब तक हम उन चीज़ों को अगर पहले से फोर्सी नहीं करेंगे, without forcing those things, today if I say that there is a project which is going to cost me 100 crores, तो तरुण जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो फोर्सी हमने नहीं करा और ये सारी चीज़ें हुई, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव टाइम ओवररन, एंड द मोमेंट यू हैव अ टाइम ओवररन, जो रिसोर्स को आप 6 महीने के लिए लेके आए थे, वो रिसोर्सेज इफ़ यू रिटेन देम फॉर 1 year, दे आर गोइंग टू चार्ज यू, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लैंड अप विद द टाइम ओवररन एंड एज वेल एज कॉस्ट ओवररन। तो ये सारी चीज़ें हैं विच इज़ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। जो हम गवर्नेंस की बात करते हैं, जो हम प्लानिंग की बात करते हैं, अगर वो चीज़ों को आप सही तरीके से पहले अगर रखेंगे, तो आपका, मुझे लगता है इट कैन नेवर बी 100%, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% हो जाएगा, बट येस टू सम रीजनेबल फैक्टर 2, 5, 6, 7, 10% तक हम इन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी टर्म यूज़ होती है, तो उसमें हम कैसे काम करें एंड कैसे उसको मैनेज करें एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट? बड़े हमारे जो आजकल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर में ये जो रिस्क वर्ड है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रिस्क मिटिगेशन इज़
is altogether a different domain nowadays. There are risk mitigation experts. We have risk mitigation domains. अब इसके अंदर में आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आपको पहले तो ये फोर्स ही करना पड़ेगा कि अगर मैं इस काम को करता हूँ तो मुझे क्या क्या रिस्क इसके अंदर हो सकते हैं। इसमें एक मज़े की बात मैं आपको तरुण जी बताऊँगा। एक जनरल हमारा फिनोमिना है कि रिस्क हमेशा बुरा होता है। रिस्क हमेशा बुरा नहीं होता। देर आर गुड रिस्क, देर आर बैड रिस्क। ओके, यू शुड कन्वर्ट योर गुड रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड कन्वर्ट योर बैड रिस्क इनटू मिनिमाइज लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। रिस्क को आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आज एक रोड पे किसी गाड़ी में जा रहे हैं एंड यू से कि आई कैन गिव यू गारंटी दैट देयर विल नॉट बी एनी एक्सीडेंट, नोबडी कैन गिव दैट गारंटी, बट यू कैन मिनिमाइज इट। You can use your safety gears, you can control your speed, you can change your driving behavior, you can use seat belts. So these are the risk mitigation plans. अब इन चीज़ों को जब हम risk mitigation plans को लेके प्रोजेक्ट में आते हैं, so they are called the risk mitigation index, जिसमें हम लोग उस रिस्क को पूरा रिव्यू करते हैं प्रोजेक्ट के पहले, किस रिस्क को किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से उसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, और कौन से रिस्क ऐसे हैं जिसको मैं अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, बट वहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्क है। रिस्क ये है कि देयर इज़ अ पॉकेट ऑफ लैंड विच कैन नॉट बी अक्वायर्ड। तो आपने अगर वहाँ पर कुछ अपने प्लान को यू कन्वर्ट इन सच अ वे दैट इंस्टेड ऑफ दैट पॉकेट, इफ़ यू ट्राई टू मेक योर अलाइनमेंट इन सच अ वे which can give benefit to more number of footsteps or more number of people, तो वहाँ पर आपने उस रिस्क को मिटिगेट पे किया और उसको अपॉर्चुनिटी में बदला। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ डायनेमिक सिचुएशंस इन द प्रोजेक्ट। तो इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि रिस्क मिटिगेशन, एज यू सेड, इज़ अ इनहेरेंट पार्ट, इज़ अ सेपरेट डोमेन नाउ फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जी, सस्टेनेबिलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसे डिफाइन करेंगे? यस, ये आपका जो सवाल है, ये नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी मॉडर्न क्वेश्चन। सस्टेनेबिलिटी जो हम लोग आज की डेट में जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हमारी इंडस्ट्री में चल रहा है, दैट इज़ ESG, दैट इज़ सेफ्टी, गवर्नेंस एंड योर एक्सपर्टाइज ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। तो इसमें ये जो आपने सस्टेनेबिलिटी की बात कही है, अब सस्टेनेबिलिटी जो है हमारे दो तरीके से हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स हेल्थ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आपने स्ट्रक्चर को बनाया है, दिस इज़ द फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी। सेकेंड वे ऑफ एनहेंसिंग द सस्टेनेबिलिटी इज़ द यूजेस आफ्टर सर्टन ईयर्स ऑफ टाइम। से फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक फ्लाईओवर बना दिया, बट यू हैव नॉट रियलाइज्ड दैट माई व्हीकल्स काउंटिंग या फिर मेरा जो यहाँ पर जो व्हीकल डेंसिटी है, हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी आफ्टर 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो क्या हो गया, आपने स्ट्रक्चर तो बना दी, यू हैव मेंटेन्ड वेरी गुड क्वालिटी, यू हैव मेंटेन्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, योर स्ट्रक्चर इज़ हाईली इंटीग्रेटेड, बट देन आफ्टर 20 ईयर्स यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ये जो मुझे अभी मैंने बनाया है, आई थिंक इट शुड हैव बीन मेड फॉर 6 लेन, मैंने 4 लेन का बना दिया था। तो 20 साल के बाद क्या हुआ, इट्स नो मोर सस्टेनेबल। सो दिस इज़ हाउ द सस्टेनेबिलिटी हैज़ टू बी एनकाउंटर्ड। सस्टेनेबिलिटी में आज के टाइम पे मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि मैं आज जो कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग टुडे, इज़ इट गोइंग टू सॉल्व माई पर्पस टुमारो? दैट इज़ नंबर 1. Second question we have to ask, what I am doing today, is it going to withstand tomorrow's kind of requirements? अब उसमें जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके यूज़र्स के ऊपर और आपकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को जब हम रख के और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो आई थिंक इन टुडेज़ वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विदाउट द फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबिलिटी हैज़ एब्सोल्युटली नो मीनिंग। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या सो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का होता है? टेक्नोलॉजी का या पैसन का या डिसीजन का?
देखिए, टेक्नोलॉजी का रिस्क तो खैर आप नहीं बोल सकते, बिकॉज एज आई सेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ रियली इवॉल्व्ड वेरी ब्यूटीफुली। आज से 30 साल पहले हम जिस तरीके से काम करते थे, नाउ द एंटायर सिनेरियो हैज चेंज्ड, एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड। सो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फ्रेंडली टू अस एंड इट हैज़ हेल्प्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बट जो हम प्रोजेक्ट में रिस्क की बात कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से हमारे डिले होते हैं, उसमें कुछ कुछ कारण बहुत ज़रूरी हैं, खासकर आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जब काम करते हैं। सो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 3 मेजर चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट को डिरेल कर सकती हैं, वो सबसे पहला है और सबसे बड़ा है आपका लैंड एक्विजिशन। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, दैट इज़ योर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से आज हमारे जितने भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, वो है अनफोर्सिन लेवल ऑफ असेसमेंट ऑफ यूटिलिटीज़। नाउ इट कैन बी योर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, ओवरहेड यूटिलिटीज़, कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पीपीपी मॉडल में या फिर हैम मॉडल में या फिर ईपीसी मॉडल में हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि इन 3 चीज़ों पे पहले कंट्रोल किया जाए। इन 3 चीज़ों पे पहले अगर आप क्लैरिटी ले आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोजेक्ट्स का डिले होने का या फिर प्रोजेक्ट्स का टाइम या कॉस्ट ओवररन होने का और कोई कारण हो सकता है। 100% नहीं है, बट यू कैन कम अप टू एक्यूरेसी ऑफ 85 to 90%। 95% तक भी आप जा सकते हैं इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी इन द विजन। जी जी यस। एंड आपने एक वर्ड यूज़ किया, पीपीपी प्रोजेक्ट्स। पीपीपी प्रोजेक्ट्स को लोग इतने कॉम्प्लेक्स और रिस्की क्यों समझते हैं? अब देखिए, पीपीपी मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मॉडल बेसिकली काफ़ी अभी it is very useful in major infrastructure projects. The best advantage of PPP model is the sharing of the capital investment by government and private players. एक उसमें ये फ़ायदा होता है। दूसरा इसके अंदर में फ़ायदा ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ दी प्रोजेक्ट्स आर क्वाइट बिग। हम अगर देखें तो इवन यू आर गोइंग अप टू 10,000 15,000 crores ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो जब हम इतने बड़े वॉल्यूम पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर में इक्वल लेवल ऑफ रिस्क एंड इक्वल लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। So we have to understand that when we talk about PPP model, because we are talking about thousands of crores, it's a huge amount. Unless you distribute the share, unless you reduce the capital risk of all the stakeholders, there will be little bit of reservations from all the stakeholders. So I think that is the first philosophy why PPP model is very much adoptable nowadays. That is number 1. Number 2, need of the hour is your infrastructure project is asking you to have big packages, otherwise you will not be solving the issue of sustainability. तो ये सारी चीज़ें हैं। If you really want to discuss, it's a big subject. There will be a long debate on this, but समय की कमी भी है और we have to wrap it up. तो ये मेन मुद्दा है ट्रिपल पी मॉडल का। वंडरफुल। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गवर्नेंस का एंड लीडरशिप का रोल एग्जैक्टली क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बेसिकली मैं आपको सबसे बढ़िया एक बात बताऊं कि हम जब गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गवर्नेंस है क्या, है ना? गवर्नेंस में सबसे पहले होता है कि यू हैव टू हैव द लेवल ऑफ फेयरनेस, यू हैव टू हैव द अकाउंटेबिलिटी, यू हैव टू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू हैव योर टेक्नोलॉजी इन प्लेस एंड क्लैरिटी अबाउट योर टेक्नोलॉजी कि आप क्या करने जा रहे हैं। एंड सबसे जो लास्ट है, द सेम थिंग इज़ द सस्टेनेबिलिटी। तो हम जब एक गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गवर्नेंस अपने आप में एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स। इन सब चीज़ों को मिला के व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल, दैट बिकम्स योर गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में आपके ये सारी चीज़ आ जाती हैं, और नेचुरली अगर आपने एक अच्छा गवर्नेंस को मेंटेन कर पाए, तो डेफिनेटली यू आर मेंटेनिंग ऑल दिस कंपोनेंट्स एंड योर एंड प्रोडक्ट विल बी बेटर। दैट इज़ हाउ आज के ज़माने में हम जब बात करते हैं ESG के बारे में, एनवायरमेंट,
सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये तीनों हमारी अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी हैं। अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में नाउ ESG पैरामीटर्स, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, या फिर जो हमारे LODR हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ESG हैज़ बिकम एज अ इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। तो इवन गवर्नमेंट इज इक्वली सीरियस अबाउट दिस थिंग्स ना, बिकॉज आपको ये तो करनी पड़ेंगी। तो अनलेस यू मेक देम इनहेरेंट इन द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, इट्स नॉट, इट डजंट हैपन लाइक दिस। तो वो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें इस चीज़ों का फ़र्क भी दिखेगा और काफ़ी अच्छा हमें इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। यस सर। तो अभी जैसे बुक्स, अगर मैं बुक के सवाल करूँगा, बुक्स में से ही या उस सब्जेक्ट के बारे में पूछूँगा तो बहुत सारे सवाल होंगे और फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। अगर आप यहीं पे सारे सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि बुक अभी अवेलेबल है। अगर आपके और इन डेप्थ कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो यू कैन बाय योर कॉपी एंड यू कैन गेट आंसर्स अबाउट इट। एंड इसमें बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सर ने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। बट आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर जर्नी। थोड़ा सा बताइए कि आप इस बुक वर्ल्ड में एंटर कैसे किए एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी। यस। जैसा कि मैंने कहा कि जब 30 साल पहले जर्नी स्टार्ट की थी एज अ यंग इंजीनियर, तो उस टाइम पे ये नहीं पता था कि हम जब किसी चीज़ को करते हैं और उस चीज़ को वापस से हम जब समराइज़ करते हैं तो उसमें से बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हमें सीखने को मिलती हैं जो हमें सीखने को मिली थी बट हम सीख नहीं पाए। सो इट इज़ नथिंग बट अ फ्लैशबैक इनटू योर करियर, अ फ्लैशबैक ऑफ योर जर्नी, जहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल आपने जो जो किया है, पेन देम डाउन, फील द प्राइड ऑफ इट, फील इट कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या अच्छा किया है, मैंने क्या बुरा किया है, मैं कहाँ और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैंने मेरे देश को क्या दिया है। और मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे में से हर इंसान अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करता है, और उन चीज़ों को नोट डाउन करना, उन चीज़ों को लेके अगर हम प्राइड फील करते हैं और आगे आने वाले समय में उन्हीं चीज़ों को मैं और कैसे दूसरे लेवल पर लेके जाऊं, और जो चीज़ें मैंने करी हैं मैं उन चीज़ों को आने वाली पीढ़ियों को, जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको हम कैसे उस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, उनको हम दे पाएँ। तो ये एक आइडिया था जिससे मुझे वो स्पिरिट मिला। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे स्वर्गीय पिताजी जो हैं उनका हमेशा ये था कि भाई कुछ भी करो तो उसको डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर करना है। तो ये सारे फैक्टर्स थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री वेर इन यू हैव द पावर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को पेन डाउन कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल इंडस्ट्री और आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में काफ़ी अच्छी चीज़ें हम और भी देंगे हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए। सो वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर अबाउट इट। यस, एंड इट्स ए वंडरफुल थिंग कि जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने लाइफ में 30 साल प्रोफेशनल कैरियर में सीखा है, अगर कोई यंग सिविल इंजीनियर होगा या कोई फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों को सीखना चाहेगा, तो आपके जैसे जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं वही लोग अगर उनको सिखा पाए तो दिस इज बेस्ट थिंग। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस यू कैन शेयर विद देम, राइट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ मेरे जो सवाल थे वो आई एम completed here and now the session is question and answers. So Q&A section चलेगा and you can ask your questions if you have with the directly author and then we can wrap up it. Yeah, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़, चाहे वो पर्सनल इवन चाहे बुक से रिलेटेड। या एक सवाल है कि ये बुक लिखने का जब आपने रजिस्टर किया हो कि आपका फादर जो भी है उस किताब का, ये आपका माइंड में कुछ होगा कि मुझे अब ये करना पड़ेगा, बहुत लेट हो रहा है या चलना भी टाइम आपको टाइम से अभी कुछ करना है, ये मुझे नहीं, टाइम तो देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप तो लिखोगे तब जब आपके पास कंटेंट हो, है ना। अब आप 1 साल काम करके तो लिखोगे नहीं। और अगर मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रैवल या फिर मैं 2 साल 3 साल 5 साल की चीज़ों को मैं पेन डाउन करता हूँ तो शायद उसमें वो तजुर्बा ना मिले जो आपको 30 साल में मिले या फिर 25 साल में मिले। तो हर चीज़ का एक समय होता है।
और उस समय पर ही उस चीज़ को करना पड़ता है। ये समय था, ये हमने किया। कुछ और भी मेरे टारगेट्स हैं, वो भी मैं करूँगा, लेकिन उस समय के हिसाब से। अब ये समय हम लोगों का ऐसा है कि भाई अब वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्री चल रही है, तो ये मुझे लगा कि ये एक सही वक्त है इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का। अरे फर्स्ट टाइम मेट्रो में करने में चांस दिया था। अच्छा, साइड इंजीनियर में भी काम था बहुत बढ़िया। और उसके बाद से मेट्रो से थोड़ा उससे बहुत कुछ सीखा। बाद में सेफ्टी भी बना और इसमें 15 साल से मैं सेफ्टी है और सेफ्टी डिपार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यस यस और भाई का गोल इन कंस्ट्रक्शन और एनी अदर इंडस्ट्री करेक्ट। और सर से बहुत कुछ सिविल के साथ साथ जब अपना मैनेजमेंट प्रोफेशन चेंज किया यस तो मुझे याद आया कि सर उस समय भी सेफ्टी पे फोकस करते थे और इस समय की लेट देखा मैंने Correct. सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स किया मैंने सेफ्टी में करेक्ट। 15 साल से करीब मैं 4 मेट्रो प्रोजेक्ट सेफ्टी बेस प्रोजेक्ट हमारी जो आपको सवाल भी पूछना है? यस सर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी सिविल के साथ साथ कितना क्रिटिकल रोल है सेफ्टी इसको थोड़ा सा सिविल इज लाइक दैट। सेफ्टी मैनेजमेंट का रोल हाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसका थोड़ा सा हाँ बताइए। आज के समय में बहुत फ़र्क आ चुका है इंडस्ट्री के अंदर। आप तो सेफ्टी के एक्सपर्ट हो। एक ज़माना था जब हम केवल सेफ्टी की बात करते थे। अब सेफ्टी इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी। हाँ, यू हैव टू टॉक अबाउट नॉट ओनली सेफ्टी, यू कॉल इट नाउ, यू कॉल इट एज अ शी, है ना? सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। नाउ एनवायरमेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ESG। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो बढ़ता गया है। सो नाउ यू हैव सेफ्टी, you have health, you have environment, you have governance and you have sustainability। तो मुझे लगता है जो हमने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो किया था, जैसा कि मैंने कहा कि upskilling is the need of the hour because your requirements are increasing। तो जैसे जैसे ये रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं ना, you have to have expertise in the sustainability, environment aspects, health aspects, governance। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दे आर कॉलिंग यू फॉर अपस्किलिंग। तो मुझे लगता है दिस इज़ हाउ द सेफ्टी इज ट्रांसफॉर्मिंग along the side with the industry of infrastructure construction। So very important subject, and without safety and health and environment, ESG, you can't imagine a project nowadays। अगर किसी और के भी सवाल हो प्लीज़ यू कैन आस्क। यस सर हेलो। तो बड़ा ग्रेट मूवमेंट है सर कि आपकी एक्सपीरियंस किताबों के पन्नों में एकत्रित हो रही है। करेक्ट। हम लोगों ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो बहुत छोटे से पोस्ट पे हम लोग कर्नल में काम करते थे। अच्छा वो समय अभी भी याद आता है कि ऐसे मैनेजमेंट का जो सूत्रधार सर रहे हैं कि एक छोटे से जगह से जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको किस तरह से और भी अच्छा किया जाए। इनका पूरा हम लोग की तरह कितने लोग हैं जो आज हम लोग अपने मेट्रो में अच्छा मुकाम हासिल किए हैं बिकॉज ऑफ यू सर। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये सिर्फ आपके लिए एक अच्छा दिन नहीं है बल्कि हमारे जितने कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्रीज में जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि इनके एक्सपीरियंस हमको बुक्स में मिल जाते हैं। हम लोग लकी थे सर, हम लोग अभी के एरा में बहुत लकी थे आपकी गाइडेंस में काम करने को मिला। तो उसके लिए हम गॉड को, सुपर पावर को धन्यवाद देते हैं कि हमने आपसे लीडरशिप सीखा सर, और जितना सीखा उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके, लेकिन ओरिजिन आप थे। आज हमको उसकी क्रेडिट मिलती है कि आप हमारे लीडरशिप से हम अपने साइड को टॉप साइड अवार्ड दिलवा रहे हैं, बट उसकी क्रेडिट वो सर। थैंक यू। और इसको बोलने में बिल्कुल मुझे हिचकिचाहट नहीं हो रही है क्योंकि वो चीज़ हम लोगों ने सीखा है। यस। तो ये अभी के जनरेशन में जो गैप आ रही है सर मैनेजमेंट की,
और एक रिदम में हम लोग पहले बढ़ते थे। आजकल एक स्टेज बाय स्टेज जंप कर रहे हैं। Yes. उसके लिए आपके जो एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए बहुत काम आएंगे और ये बहुत है सर, इस लैब को तोड़िएगा मत और आपके एक्सपीरियंस की हम लोगों को अत्यंत आवश्यकता है सर। तो सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट जो सेक्टर है सर, उसमें अभी मैनेजमेंट जो पहले एक रिदम था, जो हम लोग मैनेजमेंट बिल्कुल तरीके से सेफ्टी और हेल्थ और इन्वायरमेंट को एक प्रायोरिटी देती थी, आज भी देती है, बट वो पेपर में ज़्यादा है, प्रैक्टिकल में थोड़ी कम है। उस गैप को सर एज ए लीडर कैसे उसको हम लोग कर पाएंगे सर? ये बहुत अच्छा सवाल है। आपने सुना होगा एक नया ट्रेंड है, देयर इज़ अ न्यू वर्ड विच इज़ गोइंग इनटू द इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड द ग्रीन वॉशिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो आपने जो भी जिक्र किया, दैट इज़ नथिंग बट ग्रीन वॉशिंग, यानी कि पेपर में तो है लेकिन ज़मीन पे नहीं है। तो कलेक्टिव एफर्ट्स इसके अंदर चाहिए। भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर में काफ़ी मैंडेटरी थिंग्स हैं कि हर कंपनी को BRSR को मैंडेटरी करना है, ESG को मैंडेटरी करना है, सेफ्टी को मैंडेटरी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब हो सकता है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती हों। आज सुबह ही मैं यहाँ पर आने के पहले हमारी मीटिंग हो रही थी CIDC की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पॉइंट यही था, मुद्दा यही था कि जो चीज़ें हम लोग कंप्लाई करते हैं ऑन पेपर, क्या वो चीज़ें आर दे रियली विजिबल एट द ग्राउंड लेवल? तो मेन सवाल ये है। और मुझे लगता है इसको करने के लिए कहीं पर एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, सी नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू क्रिएट अ बैड नेम, है ना, किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी ऐसी होती है कि ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें हो नहीं पाती। मैनेजमेंट नहीं चाह रहा, मैनेजमेंट तो चाह रहा है कि मैं पूरा करूं, आई विल 100% कंप्लाई, बट ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज वहाँ पर कहीं ना कहीं एक गैप है, कहीं ना कहीं पर एक लिंक जो है वो टूटा हुआ इन द क्वालिफिकेशन, या फिर माइंडसेट, या फिर जो लोग आए हैं कहीं ना कहीं पर उनको वो चीज़ें शायद नहीं रहा हो। इसमें अभी हम लोगों ने मैंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। मैं बता दूं आपको, एक नया हमने अभी एक चैनल चालू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वेबसाइट। इट विल बी अ काइंड ऑफ, यू नो, आई विल नॉट कॉल इट एज अ ट्रेनिंग और कोचिंग, इट्स अ माइंडसेट बिल्डिंग काइंड ऑफ डिस्कशन फॉर आवर इंडस्ट्री यंग जनरेशंस। तो ये एक हमारा नया वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं विच इज़ हाईली अनकन्वेंशनल। इट इज़ गोइंग टू बी promaxpert.com. It is, the website is under construction now. It is happening maybe next 3 to 4 months. It will be available, promaxpert.com. Yes. What we are doing in this website is that there are modules. There are modules which will integrate these mindsets into the industry professionals, especially the young professionals जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं। क्या माइंडसेट में डालेंगे? माइंडसेट में उनका ये डालना है कि जो हम काम कर रहे हैं, सो यू आर नॉट ओनली अ इंजीनियर, यू आर नॉट ओनली अ फाइनेंस पर्सन, यू आर नॉट ओनली अ सेफ्टी पर्सन, यू हैव टू हैव इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ योर नेबर डोमेन एरियाज। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड लीडरशिप। इट्स नॉट लीडरशिप, it's integrated leadership. That is number one. The moment you get into the shoe of integrated leadership, you are bound to be a leader in your neighboring acumen also. Expert of your domain area. आप अपने एरिया के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को भी आपको, भले आप एक्सपर्टाइज ना करें, लेकिन आपको इंटीग्रेट करना है, ओवरव्यू करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई इंजीनियर साइट पे काम कर रहा है, या कोई दूसरा बंदा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, the moment he has this mindset of integrated leadership, I am sure that कहीं ना कहीं वो mindset change होगा। तो ये एक इनिशिएटिव हमने ली है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आने वाले 3-4 महीने के अंदर में वो वेबसाइट भी रिलीज़ होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सबका प्यार रहेगा, और डेफिनेटली वी विल बी एबल टू हेल्प लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ इट्स a small initiative from our end. Thank you.
ओके, सो अगेन बहुत बहुत बधाई सर आपको आपकी पहली बुक के लिए. एज यू ऑलरेडी नो, लाइक वी आर वर्किंग ऑन 4 प्रोजेक्ट टुगेदर, जिसमें से एक ये डन हो चुका है, 3 और अभी अपकमिंग है. एंड सर के साथ में काम करके बड़ा अच्छा लगता है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस और लोगों से ऐसे लोगों से सीखने को और हमें मिलता है. एज ए पब्लिशर मैं सर के जैसे 1500 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ. And it's a wonderful industry for me also. Like I'm reading a book of 30 साल का experience, right? So I have this opportunity to learn everything. And yes, thank you so much. And again, congratulations for your first book. Let's build something big together. Yeah, thank you so much.